हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10th circle, and in this topic we will discuss about all the formulae and theorems about circles. This is a class 10th CBSE based video and this will be helpful to all the other students of ICSE as well as state boards who have NCERT in their syllabus. So let's start and try to solve as many questions as possible on circle. So चलो चलते हैं and once again welcome to GRV classes. My name is Gaurav Tyagi. So let's start. So circle, as we know, is a collection of all the points in a plane which are at a constant distance from a fixed point. तो एक fixed point है which is called center of a circle. The distance of a point at the boundary in any direction from center will remain same. ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप सेंटर से टू द बाउंड्री जाते हैं देन यू विल सी दैट द डिस्टेंस विल रिमेन सेम इन एनी डायरेक्शन. द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज रेडियस एंड दैट विल रिमेन सेम, दैट विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, इफ यू ड्रॉ अ लाइन एंड अ सर्कल, सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट द लाइन विल पास without interacting or without touching the circle. Like in first case, the PQ is passing besides the circle and there is no point of contact between circle and a line. So there is a second possibility wherein the line will pass through the circle. The line will cut the circle into two segments, or you can say two parts, and this type of lines will called as a secant. इस तरह के line को हम बोलेंगे secant, which is cutting the circle into two parts, touching the circle at 2 points. So interacting with the circle at 2 points AB. ठीक है, so PQ is a line which is interacting with the circle at 2 points AB. This type of line are called secant of the circle. ठीक है, and third case wherein the line will touch the circle at 1 point. So a line will touch the circle at only 1 point, that will be the tangent of a circle, and the point at which the tangents cut the circle is called as point of contact. So we'll be discussing about more on tangents of a circle. ठीक है, and there are two theorems based on tangents of a circle, so we will discuss both of them, and there are other theorems that we have already discussed in class 9, so we'll revise all the other theorems that we need to solve questions based on circles. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं and try to solve few more question on this. So a tangent to a circle is a line that interact the circle at only 1 point. So tangent to a circle is a line that interact the circle at only 1 point. There is one tangent at a point of the circle. Okay, so let's start with it. So here we have two theorems. The first theorem is that tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Okay, so let's try to draw a tangent at any point of a circle. So this be the tangent of a circle. So name it at AB, and the point of contact, the point at which the tangent touches the circle is P. The tangent and any point of circle is perpendicular to the radius through the point of contact. So radius के always perpendicular होगी. So this is the one of the most important theorem that we are going to discuss in this chapter. और इस पे हमारे काफी questions based होंगे. ठीक है. So what does it mean that line passing through the center of the circles will always be perpendicular to the tangent. ठीक है. So if this is O, center of a circle, OP will always be perpendicular to AB. Or you can say APB. Okay, so OP will always be perpendicular to AP, and this is how we can solve. So OP will always be perpendicular to AB. The second is the length of the tangent drawn from external point to circles are equal. ठीक है, so length of tangents drawn from external point, so it means that the point is outside the circle. External point means the point is outside the circle. So let's try to draw a point here. The point is outside the circle, so let name it P. Okay, and let's try to draw two tangents that will pass through these point, and there can be only two tangents that can be drawn from an external point to a circle. ऐसा सिर्फ दो ही tangent हो सकती हैं which we can draw from external point to a circle, and as we know the length of the tangents drawn from external point to circles are equal. So अगर ये O है and इसको ले लो A and this is B, so what is the theorem? So if the point अगर external point P से दो tangent draw करें, so we can draw only two tangent. ये भी आप याद रखो. So we can draw only two tangent from external point to a circle. एक circle पे external point से दो ही tangent draw कर सकते हैं, and the length of these two tangents will be equal. It means PA will be equal to PB. ठीक है, so PA will be equal to PP. O is the center of the circles, and अगर हम इसको join कर दें, so if you join OA
and OB, so these two will be the radius, है ना. So these two will be the radius, so ये भी radius होगा और ये भी radius होगा, ठीक है. Okay, and so these are the two theorems that we need to study from class 10th point of view. Now let's try to discuss few more theorems that we have already discussed in class 9, but these theorems are quite relevant or important to solve the questions here as well. So these are the four theorems that we will discuss, which we have already discussed in previous classes. The first theorem is the equal chords of a circle subtends equal angle at the center. So अगर chords equal है, so if there are two equal chords, suppose we have two equal chords here, AB and CD. Okay, so if you have two equal chords AB and CD, उनको नाम दे दो AB, and here we have CD. So if you have two equal chords, they will subtend equal angle at the center of circle. So this is the case. Okay, and this point is O, which is the center of a circle. And what does it mean? Theorem means that if AB is equal to CD, then angle AOB will be equal to angle COD. Okay, so equal chords of a circle subtend equal angle at the center. So these angles will be equal. ठीक है. Theorem 3, the perpendicular from center of a circle. So if we draw a perpendicular from center of a circle, which is we can assume as to be O. So if we perpendicular draw from center of a circle to a chord, so chord is a line that touches the circle at 2 points. ठीक है. So inside the circle draw करते हैं एक line which will touch the circle at 2 points. So if the perpendicular drawn from center of circle से अगर perpendicular draw करें, so it will always divide the chords into two equal parts. It will bisect the chord. तो अगर ये point A है, ये B है, ठीक है, और ये point P है, so इसमें इसका मतलब क्या है? If OP is perpendicular to AB, if OP is perpendicular to AB, then AP will be equal to PB. Okay, so it means that if OP is perpendicular to AB, then AP will be equal to PB. ठीक है, तो ये एक थ्योरम है. ओके, एंड देयर इज वन मोर थ्योरम, इक्वल chords of a circles are equidistant from center of circle. So ये क्या है? इसमें देखें, इसमें क्या है? If there are two equal chords, suppose here we have two equal chords, ठीक है, इसको नेम दे दो A, B, C and D, and there is a center of a circle which is at O. So these two chords will always be at a equal distance from center of the circle. So this is one of the important theorem that we are going to use here. Okay, and इसका मतलब क्या है? If equal chords मतलब if AB is equal to CD, if these two chords are equal, AB is equal to CD, then इसको नाम देते हैं P and this is Q. So OP is equal to OQ. If AB is equal to CD, then OP will be equal to OQ. So equal chords of a circle are equidistant from center of a circle. One more, the angle subtended by an arc. So let's suppose this is an arc. Angle subtended by arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. तो ये है जैसे, तो इसमें अगर ये वाला एंगल, अगर ये 2 थीटा है, ये अगर थीटा है, तो दैट विल बी 2 थीटा, बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्कल. तो ये मान लो अगर A है, ये B है, ये C है और ये O है. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि AOB विल ऑलवेज बी ट्वाइस द ACB. ठीक है, सो दीज आर द 4 थ्योरम्स apart from class 10th that will be needed to solve question of a circle here. ठीक है, तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. Let's try to solve the first question and let's see. So here we have a question from a point Q. So from a point Q, the length of the tangents to a circle is 24 centimeter. So what we have to do here is we can draw a tangent to a circle. Let's try to draw a tangent to a circle. Okay, so this is a tangent to a circle and the distance of Q from center. So सेंटर से इसका डिस्टेंस भी ले लेते हैं. ओके, एंड फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 24. तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है Q, और यहाँ से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 24 एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर इज 25. सो ये डिस्टेंस 25 है एंड ये डिस्टेंस 24 है
and this is the center of a circle, ठीक है, and this is the point. इसको हम कुछ भी नाम ले लेते हैं. So let's suppose this to be P, है ना, इसका नाम P ले लिया, and center of circle is O. So what we are supposed to find here, we need to find the radius of a circle. So this is the radius of a circle, and as we have discussed, the radius will always be perpendicular to the tangent. The radius of a circle will always be perpendicular to the tangent drawn. ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है. रेडियस ऑफ ए सर्कल विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ड्रॉन. अब इसमें OPQ becomes a triangle. ठीक है, so in triangle OPQ, so this becomes a triangle. OPQ becomes a triangle. ठीक है, and in a so this is a right angle triangle, and the side opposite to the 90 degrees hypotenuse. ठीक है, so side opposite to the 90 degrees hypotenuse, and hypotenuse square is equal to, as we know, the hypotenuse square is equal to OQ square is equal to sum of the square of other two sides, which is OP plus PQ. So OQ square is equal to OP square plus PQ square, and in this we can put the value, and here we know the value of OQ, which is 25 centimeter, and OP, which is R square, PQ, which is 24. So 24 squares. Now we can try to solve this equation, and 25 square will be 625. R square is plus, and 24 square is equal to 576. So 576 will move to the other side. Okay, and here we will have 625 minus 576 is equal to R square, and if you subtract 576 from 625, it will be 49 is equal to R square, and we get the value of R here, 7 centimeter. Okay, so this is how we can solve this type of question, and there is a chance that this type of questions will be asked. Okay, and there is high chance that this type of questions will be asked. और इसमें होता क्या देखो, generally Pythagoras theorem is formed. Okay, and you have to try to solve and try to visualize the situation. आप rough में जैसी भी figure बनती है बना लीजिए, and then try to visualize and solve it. Okay, so let's try to solve one more question, and if you have not liked or subscribed to the channel by now, so please do like and subscribe to the channel and share it with your friends. Okay, so let's move on. Now we have a second question, multiple choice type question, and in this, if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, okay, so that POQ is equal to 110, okay, and so we need to find PTQ. We need to find this angle. And in order to find this angle, let us check what is given to us. तो इसमें क्या क्या given है देखो. OP is a radius, क्योंकि radius क्या होता है, सेंटर से बाउंड्री तक जो भी लाइन ड्रॉ होगी, any direction, that is radius, और ये भी radius है. And we have discussed कि radius is always perpendicular to the tangent drawn, है ना, radius is always perpendicular to the tangent drawn. तो इसमें देखो, now let's talk about the quadrilateral POQT. So in quadrilateral POQT, we know that sum of interior angle is equal to 360. तो ये हमें मालूम है, the sum of all the interior angle of a quadrilateral, कोई भी quadrilateral हो, that will be 360. Any quadrilateral can be split into two triangles, and sum of interior angle of a triangle is 180. So two triangles in a quadrilateral, it means 360. So this is how we can remember. Okay, and let's put it together. So PTQ plus TQO plus QOP plus OPT, that should be equal to 360, and these two angles will be 90 degree. This will be 90 degree and this will be 90 degree as well. So PTQ we need to find, and we can simply write it PTQ, but TQO is given to us, that is 90 degree. QOP is also known to us, 110, and this is 90, so 360. And if we calculate it, if we try to find its sum, so that will be equal to 110 plus 90, 200, 290, and 360 minus 290, so it will be equal to 360 minus 290, and that should be equal to 70 degree. So PTQ will be equal to 70 degree.
So this is how we can solve this type of question, and it's very easy to solve. This type of questions will come in 1 or 2 marks in your examination, और इस तरह क्वेश्चन जनरली आते हैं, जरूर आते हैं, और 5 से 6 नंबर का ये चैप्टर आता है सर्कल्स, जो चैप्टर छोटा है बट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू सोल्व फ्यू मोर क्वेश्चन. Now we have a question. If tangent PA and PB from a point P to a circle, so there is external point P. Let's draw external point P. ठीक है, और यहां से tangent draw होगी. So there is a 2 tangents drawn from external point P. So if tangent P and PB from a point P to a circle with center O, और एक center है वो बना लो. O is the center of a circle. Are inclined to each other at angle of 80 degree. Okay. So these 2 tangents are inclined to each other at a 80 डिग्री. तो वो भी देखते हैं क्या है इसका. एंड लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस लाइन एज वेल. इस लाइन को और बना लो. लेट्स ज्वाइन दिस ओपी. इस ओपी को ज्वाइन कर देते हैं यहां से. ठीक है, और इस ओपी को ज्वाइन करने के बाद सो क्वेश्चन में गिवन है दैट पीए एंड पीबी आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री. यानी इसका मतलब है ये वाला जो एंगल है दैट इज 80 डिग्री. दिस टोटल एंगल इज 80 डिग्री. और इसको अगर हम ए ले लें, इसको अगर हम बी ले लें, सो उसने बोला है कि उसने गिवन क्या है हमें, व्हाट इज गिवन टू अस इज एपीबी. एंगल एपीबी इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये हमें गिवन है. एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर इज वी नीड टू फाइंड पीओए. सो पीओए इज दिस एंगल. वी नीड टू फाइंड दिस एंगल. फाइंड क्या करना है, पीओए. वी नीड टू फाइंड एंगल पीओए. And okay, so before we find POA, let's try to prove that these 2 triangles, triangle AOP, so triangle AOP and triangle BOP are congruent to each other. ठीक है, and from that we will get that these 2 triangles are equal. इससे हमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी. So let's try to find angle triangle AOP and BOP are congruent to each other. ठीक है, तो इसमें what is given here, PA will be equal to PB. ठीक है, so tangent reason क्या है, tangents drawn from an external point. Tangents drawn from external point. उसके बाद PA is PB and we can say OA is equal to OB, radius of a circle. And there is an angle, so these angles will be equal. OAP will be equal to OBP. The reason is OAP will be equal to OBP, and the reason for this is radius is always perpendicular to the tangent. Radius is perpendicular to tangent. Okay, OAP is equal to OBP, so radius is perpendicular to tangent. Okay, so इससे क्या हो जाता है, इस so we can say that AOP is congruent to triangle BOP by SAS. Triangle. Okay, so we can say that these 2 triangles are equal now, and from that what we can do here is so this if these 2 triangles are equal, then we can say AOP. Then we can say AOP is equal to BOP by CPCT. Okay, so these two angles will be equal now, and we can name it A and A, and these 2 angles will be equal now because APO will be equal to APB, and similarly we can quote these 2 are equal by CPCT. Okay, and now we can try to find the value of POA. Okay, so POA, how can we find? So let's talk about the triangle APO. So in triangle APO, okay, so in triangle APO, OAP plus APO plus POA is equal to 180 degree. As we know, the sum of interior angles of a triangle, the sum of interior angle of a triangles is 180 degree. So sum of interior angles of a triangle is 180 degree, and OAP we have just find 90 degree. APO will be equal to 40 degree because the sum of these 2 angles, the
PA and PB are inclined at an angle of 80 degree और ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो 80 will be divided by 2, so this will be 40 and this will be 40. ठीक है, तो these two will be 40 and APO is 40, so we need to find now POA. So POA यहाँ से कितना आ जाएगा? So POA will be 180 minus 90 plus 40 is 130, so 180 minus 130 is 50. So 180 minus 130 is 50. So this is how we can find the answer. So if you find anything that you have missed in this question, so please revise it carefully, and you have to be very interactive in solving and watching this stream. So whenever I am solving questions, so you need to just see what I am doing and check it out, and once you know how to solve the question, so you just pause it and solve it, and then you can check it. Okay, in this way you will not miss any part. If you have any question, then you can ask in the chat box. ठीक है, so if you have not liked and subscribed to the video by now, so please like and subscribe it and share it with your friends. So let's try to solve one more question. Here the question is the proof that the tangents drawn at the end of a diameter of a circles are parallel. So we'll be talking about the tangents drawn at the end of a diameter. ठीक है, so as we know the diameter is the longest chord passing through the center of the circle. So let's make a chord which is passing through center of circle, so it will be a diameter, and at the end of the diameter there are two tangents drawn. This is the first one, okay, and this will be the second one, okay. So these two tangents drawn at the ends of a diameter, okay, and let's name the center to be O. तो ये O ले लो और इसको ले लो P और इसको ले लो Q, and name the tangent AB and CD. ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है AB is parallel to CD, और गिवन क्या है? गिवन है that AB and CD are tangents. ये गिवन है, okay. So as we know that radius is always perpendicular to tangent, so OP will always be perpendicular to AB. So we can say OP is perpendicular to APB. Similarly, we can say OQ is perpendicular to CQD. Okay. So OP is perpendicular to APB and OQ is perpendicular to CQD. So from this we can say that these two angles are 90 degree, है ना, and since APB is a straight line, so ये वाला एंगल भी 90 होगा. ठीक है, APQ will be equal to CQ, P will also be equal to BPQ and DQP, or all of these will be equal to 90 degree. ठीक है, the reason is OP is a line passing through center of a circle which should be perpendicular to the tangent. ठीक है, now so we have discussed in case of parallel lines. So in case of parallel lines we have discussed that some of the angles on the same side of transversal is 180 degree. So we have discussed co-interior angle in case of parallel lines. Parallel lines से 5 property होती है generally. So what are the 5 properties of a parallel lines? The first is alternate interior angle. The second is corresponding angle. The third one is alternate exterior angle, and there are two more which is co-interior and co-exterior. So here we will be discussing co-interior angle. ठीक है, co-interior angle कौन से होते हैं? Angle on the same side of transversal. ठीक है, so APB plus CQP, that will be equal to 180, which proves that AB is parallel to CD, which proves AB is parallel to CD. कैसे? क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है पैरेलल लाइंस की. को-इंटीरियर एंगल ये दोनों हो गए, ठीक है. सो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ एंगल on the same side of transversal. ठीक है, so this is how we can prove that these should AB is parallel to CD. This is how we can prove. ठीक है, so prove that the tangents drawn at the end of a diameter of a circles are parallel, and this is how we can draw. We can see that AB is parallel to CD. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं.
नाउ वी हैव ए वन मोर क्वेश्चन, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट्स टू द सर्कल। चलो भाई फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को भी और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं। तो ये तो क्या कहा इसने, कुछ नहीं, इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ हुआ नहीं, देखो। ठीक है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट्स टू सर्कल्स पासिस थ्रू द सेंटर। तो ये तो थ्योरम ही है ना। सो दिस इज अ थ्योरम दैट लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, सो दिस ओपी ए बी, सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये तो थ्योरम ही है। एंड इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं फर्दर। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो कि हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये ऐसा ही होता है। कैसे कि इसमें एक लाइन हम लिख सकते हैं, we can say that OPB is equal to 90 degree and OPA is equal to 90 degree as well, and if we add these two, so OPB plus OPA, this will be equal to 180 degree. इससे प्रूव होता है APB is a collinear, they are on the same line, collinear means are on the same line, so APB are on the same line, so इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि हमारा कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, इससे प्रूव होता है दैट APB इज कोलिनियर विच इज ऑन द सेम लाइन। सो इससे प्रूव होता है कि OP इज परपेंडिकुलर टू APB। ठीक है, चलो, सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव, विच इज एक्चुअली थ्योरम, जो थ्योरम ही है उसी को हमने प्रूव करना है, तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सोल्व वन मोर क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक, सर्कल। ठीक है, now we have a question, the length of a tangent from point A। ठीक है, the length of a tangent from point A at a distance of 5 cm from center of a circle। तो इस बार देखो भाई पॉइंट A जो है वो बाहर है सर्कल के, ये वाला पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, कोई पॉइंट बाहर है सर्कल के। ठीक है, और इससे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली है। ठीक है, एंड हमने रेडियस से भी उसका डिस्टेंस निकाल लिया है, एंड वी हैव ऑल्सो ड्रॉन इट लाइक दिस। तो ये हमारा सेंटर है, ये P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, अ पॉइंट वेयर टेंजेंट्स टचेस द सर्कल। ठीक है, सो O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, A इज द एक्सटर्नल पॉइंट। सो लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 cm फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से 5 cm है और टेंजेंट की लेंथ है 4 cm। व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर इज वी नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। वेरी सिंपल। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OPA बाय पाइथागोरस थ्योरम। We'll simply apply the Pythagoras theorem, and Pythagoras theorem means what does it say? Pythagoras theorem होती क्या है कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, तो 90 के अपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। तो अदर टू साइड कौन कौन सी है, OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। ठीक है, और OA यहाँ पर कितना है, OA हमारा 5 है, OP हमारा कितना है निकालना है, R स्क्वायर। AP हमारा कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो 4 स्क्वायर। ठीक है, सो दिस 5 स्क्वायर विल बी 25 एंड दिस 4 विल कम टू द अदर साइड, तो ये हो जाएगा 16 एंड R स्क्वायर। सो दिस इज 9 इज इक्वल टू R स्क्वायर। सो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 3 सेंटीमीटर। सो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करना बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा इसको समझना है अच्छे से। ठीक है, थ्योरम समझनी है और फिगर को समझना है, क्योंकि इसमें फिगर गिवन नहीं है, तो आपको फिगर को समझना है कि हो क्या रहा है। जनरली बच्चे इसमें फिगर को ही नहीं समझ पाते, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, फिगर कैसी बनेगी वो ही नहीं समझ पाते। अगर फिगर बना दो तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सोल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि पाइथागोरस तो सबने पढ़ ही लिया है, सबको 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वन मोर क्वेश्चन। और अभी तक अगर आपने इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वीडियो को, तो प्लीज डू इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं, चलो। नाउ वी हैव टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक का मतलब क्या है, देखो पहले कंसेंट्रिक का मतलब समझो। कंसेंट्रिक का मतलब है कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल है दोनों का वो सेम है, सेंटर ऑफ द बोथ सर्कल्स आर सेम। ठीक है, और अलग अलग रेडियस के सर्कल हैं, एक 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, एंड वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ ए लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो कुछ इस तरह की कहानी है कि जो लार्जर सर्कल की कोड होगी, जो कोड होगी लार्जर सर्कल की, दैट विल बी द टेंजेंट ऑफ ए स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा और ऐसा कुछ होगा।
अब ये सिचुएशन है आपके पास, ये O है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये 3 सेंटीमीटर और ये 5, ठीक है। इसको ले लो AB और इसको ले लो P, ठीक है। ये सिचुएशन है। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ ए लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। सो वी कैन अप्लाई इन ट्रायंगल OPB, ठीक है, इन ट्रायंगल OPB, और OPB में दिस OP विल बी परपेंडिकुलर टू APB, है ना। OP विल बी परपेंडिकुलर टू APB। रीजन क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो परपेंडिकुलर होगा। और इसमें और क्या चीज है, नाउ वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, P is the 90 degree, so the side opposite to the 90 degree will be perpendicular, so OB square is equal to OP square plus PB square, ठीक है। So OB here is 5 centimeter, OP is 3 centimeter, because OP is the radius of a larger circle, so O से B तक का जो है वो radius होगा of a larger circle, तो वो 5 होगा, and OP will be the radius of a smaller circle, that is 3 centimeter given to you, and PB we need to find। और एक थ्योरम हमने और क्लास 9th वाली अदर थ्योरम्स में कोट की थी, दैट इफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर सेंटर ऑफ सर्कल से लाइन ड्रॉ की गई है और वो कोड पे परपेंडिकुलर बनाती है, सो इफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू द कोड, तो इट विल बाइसेक्ट द कोड, कोड को वो दो पार्ट में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो AP होगा, वो AP जो होगा आपका, वो PB के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें थ्योरम कौन सी हमने डिस्कस की थी, दैट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक, लिख लो इसको, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये हमने थ्योरम भी पढ़ी थी। सो लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, इफ करके लिखो, इफ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू कोड, अगर वो कोड के परपेंडिकुलर होती है, देन इट विल बाइसेक्ट इट, तो वो उसको बाइसेक्ट भी करेगी। ये थ्योरम थी, ठीक है। तो यहां से 25 इज इक्वल टू 9 प्लस PB स्क्वायर, ठीक है। सो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू PB स्क्वायर, एंड 25 माइनस 9 इज 16, सो 16 इज इक्वल टू PB स्क्वायर, ठीक है। तो PB की वैल्यू कितनी आ गई, PB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, and we just say that AP is equal to PB, and what we need to find here is length of the chord of a larger circle. So length of a chord of a larger circle क्या है, AB है, so which is twice of PB, तो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। So this is how we can solve this type of questions, and this type of questions are easy to solve if you know how to draw a figure। तो आप धीरे से इसको स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझिए, पढ़िए, एंड जस्ट ड्रॉ अ फिगर बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट यू गेन फ्रॉम द क्वेश्चन, और उसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। अगर आप फिगर नहीं बनाते हैं स्टार्टिंग में, सो यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू सोल्व, और आपको पता नहीं चलेगा कई बार कि हो क्या रहा है, करना क्या है, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू ड्रॉ अ सर्कल, और उसमें जो भी कुछ आपको जहां पर भी गिवन है वहीं पर ड्रॉ कर दीजिए, मार्क कर दीजिए। और इसमें सर्कल जैसे जो भी आपके पास रफ सर्कल आप बना सकते हैं, तो ट्राई टू ड्रॉ रफ बेस्ड ऑन द नॉलेज गिवन, है ना। जैसे इसमें बोला एक छोटा है एक बड़ा है, तो एक छोटा एक बनाओ, फिर एक उसके बाद बड़ा बनाओ, कंसेंट्रिक है तो सेंटर दोनों का सेम रखो, तो इस तरीके से बनाओ, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं, एंड ट्राई टू सोल्व वन मोर क्वेश्चन। अब इसमें देखो एक क्वाड्रिलेटरल गिवन टू यू, quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Circumscribe मतलब the circle is inside the quadrilateral. Circumscribe मतलब सर्कल अंदर है, और इन सर्कल मतलब सर्कल बाहर है, ठीक है। circumscribe मतलब सर्कल अंदर है, ठीक है। एंड AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक है। चलो अब इसमें देयर इज वन थ्योरम दैट वी हैव डिस्कस, तो वो थ्योरम पढ़ी है हमने कि इफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये देखो सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, ABCD आर द एक्सटर्नल पॉइंट्स, और उसके बाद ये सब टेंजेंट्स ड्रॉन है, तो PB और Q आर द टेंजेंट्स ड्रॉन, ठीक है। सिमिलरली QC एंड
RC आर द टेंजेंट्स ड्रॉन, तो ये सब टेंजेंट्स ड्रॉन है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स एंड हमने डिस्कस किया है कि हमने थ्योरम में पढ़ा है कि दीज टू विल बी इक्वल। ठीक है, तो लिख लेते हैं, देखो PB विल बी इक्वल टू BQ। ठीक है, PB विल बी इक्वल टू BQ, इसको फर्स्ट इक्वेशन करके लिख लेते हैं। और इसके बाद क्या होगा, PB विल बी इक्वल टू BQ, उसके बाद QC दैट शुड बी इक्वल टू CR, DR विल बी इक्वल टू DS, और फोर्थ वाला है SA विल बी इक्वल टू AP, SA विल बी इक्वल टू AP। ये फोर्थ, ये चार हमने इक्वेशन बना ली। ठीक है, चार इक्वेशन हमने बना ली एंड रीजन फॉर ऑल ऑफ देम क्या होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट पॉइंट है, पॉइंट्स नहीं है, आर इक्वल, सबका रीजन एक ही है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमें ये भी मालूम है दैट AP और PB, इफ यू ज्वाइन AP एंड PB, सो AP प्लस PB विल बी इक्वल टू AB। ठीक है, तो AP यहां पर है और PB यहां पर है। ठीक है, और इन दोनों को क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से क्या किया हमने, AP प्लस PB इज इक्वल टू SA प्लस BQ। हमने क्या किया, इन फर्स्ट और फोर्थ को ज्वाइन कर दिया, ऐड कर दिया। सो AP प्लस BB कितना हो गया, हमारा AB हो गया, और SA प्लस BQ, SA प्लस BQ, या फिर ऐसा करो, इनको सबको ज्वाइन कर देते हैं, सभी को ज्वाइन कर दो और उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। इसमें फ्रॉम फर्स्ट, इसमें क्या कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सेकंड, इन सबको ज्वाइन कर दो। तो AP PB के साथ ज्वाइन कर दिया, तो AP PB के साथ ज्वाइन हो गया, तो क्या बना, AB बना। और इसमें और किसी को ज्वाइन करना है, इसमें AP PB को ज्वाइन कर लिया। अब इसमें AB आ गया, CD आना है, CD में क्या है, RC और DR। तो यहां पर RC है, तो यहां पर ले लो DR, है ना, DR प्लस RC, RC कहां पर है, ये रहा RC। और दूसरी साइड में क्या ऐड कर दोगे, RC के साइड साथ में QC है और DR के साइड में है DS। ठीक है, तो ये AP प्लस PB AB हो गया, और RC प्लस DR कितना हो गया, RC प्लस DR कितना हो गया भाई, RC प्लस DR हो गया DC या CD। ठीक है, तो AB प्लस CD किसके इक्वल हो गया, अब यहां से देखो SA प्लस SD, ये देखो ये और ये, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, और इसमें बाकी दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें सबको ऐड कर दो। ठीक है, सो चार इक्वेशन बनाओ एंड देन ऐड ऑल ऑफ देम इन ए मैनर कि आपको जो चाहिए वो मिल जाए। ठीक है, और इसमें हमने कंडीशन क्या लगाई है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से हम वी कैन ट्राई टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आप थोड़ा सा इसको समझ के चलो। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। Now in this question, in figure 10.3, xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O. ठीक है, तो xy and x dash y dash are two parallel tangents to the circle with center O. Okay, and we have already discussed in case of parallel lines, all the 5 properties will be hold true. कौन कौन सी properties हैं parallel lines की, alternate interior angle, alternate exterior angle, co-interior, co-exterior and corresponding angle. So these 5 properties will be hold true in case of parallel lines. So xy and x dash y are two parallel tangents to circle center O and another tangent AB. AB एक और tangent with point of contact C, ठीक है, intersecting xy at A and B. Prove that AOB is equal to 90 डिग्री। तो हमें प्रूफ करना है AOB 90 डिग्री है, तो ये हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। देखो, ठीक है, और हमें गिवन क्या क्या है, हमें बहुत सारी चीजें गिवन है, हमें दो पैरेलल लाइंस भी गिवन है। ठीक है, हमें बहुत सारी चीजें गिवन है, तो कैसे कैसे करेंगे देखो। चलो भाई, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखो अब इसमें देखो हो क्या सकता है कि AOP और AOC, हमारे जो दो ट्रायंगल्स हैं ये AOP और AOC, हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, और इसमें OC को ज्वाइन कर दो, तो इसमें OC को ज्वाइन कर दो फटाक से, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट ट्रायंगल AOP एंड AOC। तो AOP तो ये वाला है, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC। AOP और AOC की बात करेंगे तो AOP और AOC में क्या क्या इक्वल है, तो देखो ये OP विल बी परपेंडिकुलर टू AP, क्योंकि OP रेडियस है और AP क्या टेंजेंट है। सिमिलरली OC विल बी परपेंडिकुलर टू AC, क्योंकि इसमें क्या कंडीशन है, OC क्या है, रेडियस है, और AC क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। और कुछ हमारा OA जो है वो कॉमन है ना, OA क्या है हमारा, कॉमन है। और क्या है इसमें, AP इज इक्वल टू AC होगा, क्यों, टेंजेंस डाउन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो मिल गई तीनों चीजें, ठीक है। और भी है इसमें, क्या है, OP इज इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी लेंगे, जैसे हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज हैं टू प्रूव द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कौन कौन सी, SAS, SSS और कौन सी है भाई, SSS, SAS और ASA या AS, है ना। तो ASA और AS तो एक ही बात है। सो लेट्स ट्राई टू सोल्व हियर। सो हम यहाँ पर SAS भी लगा सकते हैं, और आप देखो तीनों साइड हमें इक्वल मिल गई, तो हम SAS भी लगा सकते हैं और SSS भी लगा सकते हैं। तो SSS लगा देते हैं, ठीक है। तो AP इज इक्वल टू AC, AP AC का इक्वल है। रीजन, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। देखो अगर आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो आपको रीजन लिखना बहुत जरूरी है। ऐसे ही इसमें OA इज इक्वल टू OA, क्या है रीजन, कॉमन। उसके बाद OP इज इक्वल टू OC, रीजन, रेडियस, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हुआ, हेंस ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC बाय SSS। और इसमें हम ये एंगल भी ले सकते थे, OCA विल बी इक्वल टू OPA, तो ये S से भी हो जाती है और SSS से भी हो गई है अभी, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो अब इसमें देखो, जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, ये इसके इक्वल है। और AOP की जब हम बात कर रहे हैं तो AOP में ये वाला एंगल AOP जो होगा वो AOC के इक्वल होगा, यानी ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। सो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि दैट AOP इज इक्वल टू AOC बाय CPCT, है ना। तो ये CPCT से इक्वल हो गया। और दूसरा और क्या है इसमें, और देखो इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। अब इसमें सिमिलरली क्या हो जाएगा, PAC जो होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है कि AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये मिल गया और ये भी मिल गया। और सिमिलरली होगा क्या, सिमिलरली जब हम जब बात करेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स की, सिमिलरली अगर हम बात करेंगे, सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट BOQ और BOQ और BOC, अगर हम BOQ और BOC की बात करें तो उसमें भी यही सिचुएशन हो जाएगी, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। बात समझ में आई। अब सो इफ यू ऐड ऑल द फोर इक्वेशन, है ना, अगर देखो जैसे ये इसके इक्वल है, अगर ये A है तो ये भी A है, ये अगर B है तो ये भी B है ना, ये अगर, तो इसमें क्या करते हैं, सो लेट्स ट्राई टू ऐड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सो एंगल AOP प्लस AOC प्लस AOP AOC और उसका COB प्लस BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री,
है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर है। रीजन क्या है इसका, पीओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए डायमीटर। ठीक है, अब एओपी हमारा क्या है, एओपी अगर हमारा ए है, एओपी अगर हमारा ए है तो ए और सी भी हमारा ए है। ठीक है, सिमिलरली सीओबी अगर हमारा बी है तो हमारा बीओ क्यू भी बी है। तो यहां से क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो गया, 90 डिग्री। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, क्योंकि ए और बी क्या क्या एंगल है हमारे, एओसी हमारा ए है, एओसी हमारा ए है, और हमारा बीओसी भी, बीओसी हमारा बी है। तो ए प्लस बी हमारा क्या होगा, एओसी और बीओसी। तो यही हमें प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना, देखो हमें प्रूफ करना था एओसी प्लस बीओसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमें प्रूफ करना था, विच मीन्स एओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो वी कैन से हेंस प्रूव्ड। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बिट टिपिकल और टफ टू सोल्व, बट अगर आप इसको अच्छे से देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, सो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सोल्व एंड गेट फुल मार्क्स इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें हमें अप्रोच समझनी है कि कैसे कैसे हमें करना है। तो अप्रोच आप समझ के रखेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू, है ना। तो इसमें क्या करना था, हमें ए और बी को 90 डिग्री प्रूफ करना था। तो हमने इसको कुछ इस तरीके से किया कि हमने प्रूफ कर लिया कि उसके जो भी 4 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है लाइन पीओ क्यू, दैट इज सो वो इक्वल्स है ना। तो वो इक्वल पार्ट्स में है, तो फिर हमने उसको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल लगा के प्रूफ कर लिया। ठीक है, एंड यू कैन राइट सिमिलरली लाइक, आपको 2 बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एओपीओ एंड एओसी अगर प्रूफ कर लिया दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो सिमिलरली बीओक्यू एंड बीओसी विल बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे एंड ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, एंड क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, देखो इसमें प्रूव दैट द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल। तो भाई सबसे पहले तो बना लो एक सर्कल, एंगल्स बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट ले लो एक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 टेंजेंट बना ली फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये हम इसको नाम दे देते हैं, पी दे देते हैं, एंड ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये ए हो गया, ये बी हो गया। सो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द 2 tangents drawn from external points to a circle is supplementary। supplementary का मतलब क्या होता है, supplementary का मतलब होता है 180, sum of 2 angles is 180, है ना। 2 एंगल का सम अगर 180 है तो वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो इसका मतलब क्या है, इस सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ये बन गया OA एंड OB को हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के सेंटर पर ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो ये तो बहुत ही आसान है। ये हमारा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है दैट OAP विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है कि OA इज अ रेडियस, OA तो रेडियस है ना, और AP क्या है, AP इज टेंजेंट। ठीक है, तो OA रेडियस, AP टेंजेंट, सो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, दूसरा OBP विल बी 90 डिग्री, सेम लॉजिक, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब क्या करो, इन क्वाड्रिलेटरल APBO, इन क्वाड्रिलेटरल APBO, तो APBO क्वाड्रिलेटरल में क्या करना है आपको, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स कितना कर दो, 360 कर दो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में वही होता है, OAP, APB, PBO प्लस BOA, दैट शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। और उसने क्या बोला है, उसने प्रूफ करने के लिए क्या बोला है आपको, उसने बोला है प्रूफ AOB प्लस APB
इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसने ये प्रूफ करने के लिए बोला है, ठीक है। सो OAP हमारा कितना है, 90 डिग्री रख दो भाई। APB हमारा कितना है, सो वी नीड टू फाइंड इट। PBO अगेन 90 डिग्री एंड BOA वी नीड टू फाइंड, ठीक है। सो APB plus BOA that should be equal to 360 minus 180 because 90 plus 90 is 180, so that sheet is equal to 180 and that is what we need to prove here. So हमारा क्वेश्चन हो गया अभी सॉल्व, ठीक है। So APB plus BOA comes out to be 180 degree and this is what we were supposed to find. हमें वही इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो आया समझ में, अच्छे से समझ में आया आप लोगों को। सो प्लीज अगर अच्छे समझ में आ रहा है, आप सब कुछ अच्छे से समझ रहे हैं, सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो, है ना। और प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करो, लिंक शेयर कर दो, सो दे विल ज्वाइन द वीडियो एज वेल, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। तो पहले सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या है कि भाई सर्कल अंदर है, तो सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, तो एक पहले बनाते हैं रोम्बस, ठीक है। रोम्बस बना भी सकते हैं और उसकी फिगर भी ले सकते हैं, चलो फिगर ले लेते हैं। तो रोम्बस कुछ स्क्वायर की तरह होता है, स्क्वायर नहीं होता एग्जैक्टली, पर होता है स्क्वायर की तरह, और इसके अंदर सर्कल है, सर्कल कुछ दूसरे कलर का लेते हैं। तो ये ले लिया हमने सर्कल इसके अंदर। अब सर्कल को क्या करो, स्ट्रेच कर दो, ओके। सो दिस इज द सिचुएशन, ये सिचुएशन है भाई। पैरेललोग्राम इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस, ये हमें प्रूफ करना है। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ले लो ऊपर नाम दे दो इसके, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड इट इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, तो सर्कल को वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को भी नाम दे दो, इसको ले लो P, इसको Q, इसको R, इसको S, ठीक है। एंड वी कैन ट्राई टू ज्वाइन वन ऑफ द डायगोनल एज वेल, ठीक है। डायगोनल भी एक हमने ज्वाइन कर लिया, और हमारा हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, वी कैन ज्वाइन दिस एज वेल, ठीक है। तो वी विल ट्राई टू अप्रोच की ORCN OSA, ये दो जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ORC एंड OSA, ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, हम प्रूफ करेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ होगा, इससे हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा ये RC जो होगा हमारा, ये हमारा AS के इक्वल होगा। तो इससे क्या प्रूव होता है कि देखो ये पैरेललोग्राम तो है ही, पैरेललोग्राम तो हमें गिव ही नहीं है। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसमें हमें AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD दे रखा है, ठीक है। सो AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD दे रखा है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल एंड इफ यू मैनेज टू प्रूव दैट देयर एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम की, तो ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल इफ यू मैनेज टू प्रूव दैट कि देयर एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल, अगर उनकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं इसको, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करेंगे। देखो OS इज रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड OS विल बी परपेंडिकुलर टू द tangent that is AD and OR will also be perpendicular to the tangent DC, ठीक है। और क्या है इसमें, इन केस ऑफ पैरेललोग्राम्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो OA will be equal to OC, ठीक है। OA will be equal to OC भी हो गया, OS पे 90 डिग्री बन रहा है, OS is 90 डिग्री और ORC is 90 डिग्री, ये हमें मिल गया। और क्या है इसमें, और देखो क्या बन रहा है, OR OS, ये दोनों रेडियस हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रायंगल OSA एंड ORC, ठीक है। सो इसमें क्या है, OS इज इक्वल टू OR, रेडियस ऑफ ए सर्कल, और क्या है भाई इसमें देखो OSA देखो, OSA इज इक्वल टू ORC 90 डिग्री, रीजन क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। और इसमें क्या है, OA इज इक्वल टू OC,
O is a midpoint, you can say, or you can say diagonals of a parallelogram bisect each other. ठीक है, तो OA is equal to OC हो गया. ठीक है, तो we can say that these two triangles OSA is congruent to ORC by किससे हुआ भाई? RHS से हुआ, क्योंकि एक एंगल 90 है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल एंड वन ऑफ द अदर साइड इज इक्वल, तो RHS से हो गया दोनों कॉन्ग्रेंट. ठीक है, एंड व्हेन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देयर पार्ट आर आल्सो कॉन्ग्रेंट, सो AS विल बी इक्वल टू CR. AS किसके इक्वल होगा? CR बाय CPCT. ठीक है, AS विल बी इक्वल टू CR बाय CPCT. बात समझ में आई? ठीक है, और DR विल बी इक्वल टू DS. तो DR तो DS के इक्वल है ही, ये तो मैं गिवन ही है. कैसे गिवन है? ये टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. बट टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ये तो दोनों है ना. अब देखो DR भी, DR DS के इक्वल है, और अगर हमने AS प्रूफ कर लिया RC के इक्वल, तो इससे क्या प्रूव हो गया? इससे प्रूव हो गया AD इज इक्वल टू DC. ठीक है, तो यहां पे लिख भी सकते हो फ्रॉम अबाव AD इज इक्वल टू DC. ठीक है, तो AD इज इक्वल टू DC हो गया, और AD इज इक्वल टू DC हो गया तो क्या प्रूव होता है हमारा? हेंस ABCD इज ए रोम्बस. ABCD इज ए रोम्बस, क्योंकि इफ द पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम आपको गिवन है और उसमें आप इफ यू मैनेज टू प्रूव दैट एडिसेंट साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब वो क्या बन गया? रोम्बस बन गया. क्योंकि रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम में, एक्सेप्ट कि एडिसेंट साइड्स आर नॉट इक्वल. ठीक है, चलो आगे चलते हैं एंड ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. ओके, सो हियर वी आर गिवन अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. ठीक है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है. ठीक है, इसमें कैसे करते हैं देखो. अब इसमें क्या गिवन है हमें, देखो क्या कर सकते हैं हम. सो ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर है. सच दैट सेगमेंट BD and DC into which BC is divided by the point of D are of length 8 and 6. ठीक है, ये 8 है, तो ये भी 8 होगा. इसको अगर ले लो आप P ले लो, ठीक है, इसको Q ले लो, तो ये भी 6 होगा. फाइंड द साइड AB एंड AC. हमें पूरी AB और AC निकालनी है. ठीक है, चलो करते हैं. अब देखो भाई क्या कर सकते हैं इसमें. देखो इसमें हम एक तो अजम्पशन से कर सकते हैं. अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है, ये जो कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि ये सेंटर जो है इज ऑन द लाइन. ठीक है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तीनों का, तो ये सेंट्रोइड बना रहा है. और अगर ये सेंट्रोइड है सो इसमें कंडीशन होती है कि सेंटर से ऊपर, सो वर्टेक्स से 2:1 का रेशियो होता है. तो 2:1 का रेशियो के हिसाब से OA बिकम्स, ठीक है, सो OA बिकम्स 8 सेंटीमीटर बिकॉज OD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ ए सर्कल इज गिवन टू अस. ठीक है, और ये इसका रीजन क्या है कि एक रेशियो होता है. ठीक है, ये सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल का रेशियो होता है. ठीक है, फ्रॉम वर्टेक्स इट इज 2 पार्ट एंड फ्रॉम सेंटर टू द अदर साइड इट इज 1 पार्ट. ठीक है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. तो एक तो ये तरीका है. ठीक है, इससे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वी कैन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू. ठीक है, इसमें हम अब क्या कर सकते हैं, OAQ में हम इसमें ये 90 डिग्री होगा बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंस ड्रॉन. ठीक है, और ये अगर हमें मिल जाता है, OE अगर हमें मिल जाता है, तो वी कैन अप्लाई सिंपली इन ट्रायंगल OQA में हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. सो बाय इन ट्रायंगल OQA बाय पाइथागोरस थ्योरम. इन ट्रायंगल OQA बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो 90 डिग्री पे OQ जो है 90 बना रहा है. सो OA स्क्वायर साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज, सो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर. ठीक है, एंड OA इज हाउ मच? OA इज 8 सेंटीमीटर, सो 80 स्क्वायर इज इक्वल टू OQ कितना है हमारा? रेडियस ऑफ ए सर्कल 4 सेंटीमीटर. AQ वी नीड टू फाइंड. ठीक है, तो 64 माइनस 16 इज इक्वल टू AQ स्क्वायर. सो AQ हमारा कितनी होगा? 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा?
48 का अंडर रूट, एंड 48 कितना होता है 16 3 तो 4√3. So 4√3 is the AQ. Okay, and similarly AQ is 4√3, so AP will be 4√3 as well. So that should be equal to AP, because tangents drawn from external point, A is external point for these two tangents AQ and AP. ठीक है, tangents drawn from external point we can simply write. ठीक है, and what we can do here is, so if we need to find AC, so AC will be equal to QC plus AQ, which is 6 plus 4√3, and similarly we can find AB, which is PB plus AP, so 8 plus 4√3. ठीक है, so this comes up 4√3 comes out to be 4√3 की वैल्यू कितनी होगी देखो 6.93. ठीक है, so this comes out to be 12.93 will be the answer here, and here it will be 14.93, which can assume to be 13, and here it can assume to be 15. So this is how we can solve this type of question, and this type of questions are a bit typical to solve, but we can solve it, and there are other methods to solve this type of question as well. So और भी एक दो methods हैं which are bit lengthy to solve. तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, and you will get maximum marks in this question. ठीक है, so let's try to solve one more question based on the same topic. And here we have proved that opposite sides of a quadrilateral. Here we have proved that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of circle. तो इसमें क्या सिचुएशन है, इसमें भी हम कुछ ऐसा ही बनाएंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन ए क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, और दिस क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल. तो इसका क्वाड्रिलेटरल का नाम दे दो ABCD. लेट्स नेम इट ABCD. ठीक है, तो प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल. तो दीज टू विल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल. तो इसका मतलब क्या है देखो, अपोजिट साइड विल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. कुछ इस तरह की बात वो कहने की कोशिश कर रहा है, एंड वी कैन ट्राई टू प्रूव कि वो यही कहना चाह रहा है या कुछ अलग कहना चाह रहा है. ठीक है, तो इस तरह से कुछ कर सकते हैं हम. ठीक है, तो चलो करते हैं. अब इसमें देखो वी कैन नेम इट बाय P Q R and S. वी कैन नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू बी P Q R S. ठीक है, और इसको हम एंगल को भी अलग अलग ले सकते हैं. सी वी कैन सिंपली डिवाइड इट इनटू अदर पार्ट्स एज वेल. तो हम इसको और भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे मान लो हमने इसको ज्वाइन कर दिया, P R को, हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया. ठीक है, अब हमने ये सारी चीजें ज्वाइन कर दी. ठीक है, और इसमें हम नेम कर सकते हैं इसको ABCD. तो इसको अगर हम A ले लूं, इसको B ले लूं, इसको C ले लूं, इसको D ले लूं, आई एम नेमिंग द एंगल E F G और H. ठीक है, इसको इतने सारे पार्ट में डिवाइड कर लिया. पार्ट में डिवाइड करने का लॉजिक क्या है, क्योंकि हम ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ करेंगे, है ना. तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल हम यूज करने वाले हैं, और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से हम इसको इक्वल प्रूफ करेंगे. ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे देखो इसमें. ठीक है, तो इसमें हम जो साइड वाले, जैसे हमारा B, वी विल ट्राई टू प्रूफ कि B इक्वल टू C, A इक्वल टू H एंड G इक्वल टू F. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये O ले लेंगे विच इज सेंटर ऑफ ए सर्कल. ठीक है, एंड विल टॉक अबाउट इन ट्राइंगल BOP एंड ट्राइंगल BOP और BOQ की अगर बात करें तो देखो इसमें क्या क्या है. दिस इज 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. तो ये 90 हो गया. ये कॉमन है, OB इज कॉमन, एंड OP एंड OQ इज रेडियस ऑफ ए सर्कल. ठीक है, तो इसमें हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं. देखो कैसे, एंड PB विल बी इक्वल टू BQ एज वेल. तो वी कैन प्रूव इट बाय SAS RHS और वी कैन प्रूव इट बाय SSS ओनली. ठीक है, सो BP विल बी इक्वल टू BQ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. ठीक है, BP इज इक्वल टू BQ
और इसमें OP विल बी इक्वल टू OQ, रेडियस है, ठीक है भाई। OP विल बी इक्वल टू OQ, और इसमें और क्या है, OB इज इक्वल टू OB, OB इज इक्वल टू OB कॉमन है, ठीक है। इससे क्या प्रूव होता है, हेंस ट्रायंगल BOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOQ बाई SSS, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है, इससे प्रूव होता है BOP इज इक्वल टू एंगल BOQ, ठीक है। तो इससे प्रूव होता है कि एंगल B इज इक्वल टू C है, ठीक है। और सिमिलरली क्या प्रूव हो जाता है, सिमिलरली वी कैन अप्लाई दिस थ्योरम इनटू अदर। तो इससे क्या प्रूव होता है, A इज इक्वल टू H, है ना, G इज इक्वल टू F, और क्या प्रूव होता है, E इज इक्वल टू D, ठीक है। एंड इफ यू ट्राई टू ज्वाइन ऑल ऑफ दिस, अगर हम इन सबको ज्वाइन कर लें तो हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, हम प्रूफ कर सकते हैं इसमें कि ये जो, जैसे हम अगर सबको ज्वाइन कर लें, मान लो इन सबको ज्वाइन कर दें, अगर हम कर दें A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H, सो ऑल द सम ऑफ ऑल ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 360, है ना, सबका सम 360 होगा। और इसमें देखो आप A किसके इक्वल है, H के इक्वल है ना, A H के इक्वल है। उसके बाद B हमारा C के इक्वल है ना, D हमारा E के इक्वल है, और G हमारा F के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें ट्वाइस करके लूं तो आई कैन टेक लाइक A प्लस B और इक्वल टू F प्लस E, ठीक है। तो E प्लस F इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था इसमें। सो A प्लस B E प्लस F इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसमें आप देखो, अगर A प्लस B कितना है, A प्लस बी और EF को देखो, तो A प्लस बी इज एंगल AOB और EF कितना है हमारा, एंगल DOC। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेट सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो यही हमें प्रूफ करना था इसमें, एंड दिस इज हाउ वी कैन प्रूव इट, है ना। तो इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स भी हमने यूज किया। तो इन सर्कल्स वी हैव यूज्ड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स in many case. It was in your syllabus in class 9th. So you have to be thorough with congruency of triangle. Congruency of triangles में 4 थ्योरम होती हैं. There are 4 criteria by which you can prove that 2 triangles are congruent: SAS, SS और ASA. And the 4th one is RHS. तो 4 हैं, ठीक है. तो 4 थ्योरम में से out of 4 you can use any of it, जो भी आपको सिचुएशन में फिट बैठती है, ठीक है. और इसमें हमने क्या किया, BC को इक्वल प्रूव किया और इस तरीके से वी कैन ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन, ठीक है. और आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. अगर आपको इसमें सब कुछ समझ में आया अच्छे से तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड प्लीज़ फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिससे वो भी सब्सक्राइब करें एंड उन सबको भी अच्छा लगे, ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. हैव ए नाइस डे.